السلام علیکم، آج 12 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سعدیہ غوث اور میں ہوں علی معظم۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، جرائم سے جڑی خبروں سے شروع کرتے ہیں۔ رخ کریں گے کراچی کا، جہاں 2 روز قبل ٹریفک حادثے میں جم حق پروفیسر طارق صلاح الدین اور ان کی اہلیہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ستم یہ ہے کہ مرحومین کے پاس موجود 22 لاکھ روپے نقد اور طلائی زیورات بھی لوٹ لیے گئے۔ کراچی میں 2 افراد کی موت کے ساتھ معاشرے کی موت بھی واقع ہو گئی۔ ہفتے کے روز پروفیسر طارق اسکیم 33 سے عزیز آباد اپنے گھر منتقل ہو رہے تھے۔ سامان بھجوا دیا تھا، اہلیہ کے ساتھ گھر جا رہے تھے کہ ڈمپر نے کچل ڈالا۔ پروفیسر صاحب کے پاس 22 لاکھ روپے نقد اور طلائی زیورات موجود تھے، جسے جائے حادثہ پر موجود شہریوں نے لوٹ لیا۔ ان کے پاس اچھی خاصی رقم تھی، کچھ نہیں، اور سونا تو ٹرک پہ لوڈ نہیں کر سکتے تھے، اماؤنٹ بتا رہے تقریباً 22 لاکھ کے قریب خود لے کر آ رہے تھے اور بقیہ سامان ٹرک پہ آ رہا تھا۔ تو ٹیچر ہمارے رواں دواں ہوئے اس جانب کہ اگر پولیس والوں کے پاس ہے تو ان سے وہ سامان لے لے۔ پروفیسر طارق صلاح الدین اور ان کی اہلیہ کی نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور اہل محلہ سمیت امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان بھی شریک تھے۔ یہ حادثاتی واقعات ہیں جو اس شہر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ ٹینکر اور ڈمپر دراصل موت کا منظر پیش کر رہے ہیں، جہاں سے یہ گزرتے ہیں لوگوں کو رونتے ہوئے جاتے ہیں۔ پروفیسر طارق تو ناگہانی موت کی نظر ہوئے، لیکن معاشرے کی بے حسی ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی۔ کیمرامین عدنان کے ساتھ سولت جعفری، آج نیوز، کراچی۔ لاہور میں شوہر نے نشے کے لیے پیسے نہ دینے پر بیوی کی جان لے لی۔ جنونی نے والدہ اور بہنوں کے ساتھ مل کر بیوی کو مبینہ تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ لڑکی کی فیملی نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے آج نیوز کے نمائندے علی آوان سے۔ جی بالکل، لاہور میں تشدد کے واقعات جو ہیں وہ تھم نہ سکے۔ 4 سال قبل جو ہے وہ مغل پورہ میں بیاہ کر جانے والی خاتون کو جو ہے وہ سسرالیوں نے ایک تشدد کیا اس سے پہلے، اور بعد میں جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیش کس طرح سے آیا، میرے ساتھ قتل ہونے والی کے والد جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ آپ کو کب پتہ چلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے رابطہ کب منقطع ہوا، اور تشدد کیا کہ اس طرح پہلے تشدد کیا اس کے بعد قتل کیا؟ تشدد تو اس کے اوپر یہ 3-4 سال سے کرتے آ رہے تھے۔ یہ مانگتے تھے بیسیکلی نا، پیسے مانگتے تھے ہمارے سے نا، بچی کو کہتے تھے اپنے گھر سے پیسے لے کر آ، زیور لے کر آ۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم گئے، بیٹی میری کو انہوں نے لٹایا ہوا تھا، جو اس کی ساس تھی اس نے پیر پکڑے تھے، دونوں نندوں نے ہاتھ پکڑے تھے، اور یہ جو دماد ہے میرا، یہ بیلٹ تھی اس کے ہاتھ میں، اسے مار رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی جو تھا اس کے ہاتھ میں نا وہ راڈ تھی، اس کے جسم پہ استریوں کے نشان، راڈ کے نشان۔ حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ یار بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر یہ چھوٹ گیا، یہ ایسا بندہ درندہ چھوٹ گیا تو اوروں کی بیٹیوں کا بیڑا غرق ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ یار اس کو چھوڑ دیا، ہمیں بھی چھوڑ دیں گے۔ میری التجا ہے کہ میری بیٹی نہیں، اپنی بیٹی سمجھ کے اس کا کچھ نہ کچھ ترادت کریں تو ان کو سزا دلوانی چاہیے۔ حکومت وقت سے جو ہے وہ صرف ایک مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ جس طرح ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے اس کو انصاف دلوایا جائے، اور جو ملزم اب پولیس کی حراست میں ہے اور گرفتار ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے۔ جی ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ جڑا والا میں ٹک ٹاک کا شوق 2 روز کی دلہن کی جان لے گیا۔ 22 سالہ فاطمہ پستول کے ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی کہ اچانک گولی چل گئی۔ پولیس کے مطابق فاطمہ کی اپنے ہی گاؤں کے عظمت سے شادی ہوئی تھی۔ پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے دکاندار حسن کی موت کے بعد مزار قائد سے متصل ٹائر مارکیٹ کے دکاندار سراپا احتجاج ہیں۔ کہتے ہیں نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کاروبار کرنے دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات شازب حسین کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ شہر قائد میں ڈاکو راج۔ مزار قائد اسلامیہ کالج کے قریب گزشتہ روز ڈاکوؤں کی فائرنگ سے حسن کی موت ہوئی۔ ٹائر مارکیٹ کے دکانداروں نے احتجاج کیا۔ دکانداروں نے کہا کہ ڈاکو دن دہاڑے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بائک والا یہاں گزر رہا ہوتا ہے، چاہے بیچارہ وہ صحیح بھی ہو، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ یار یہ آ گیا، ڈکیت آ گئے، تو ہمیں کوئی مطلب تحفظ وغیرہ نہیں مل رہا یہاں پر۔ اتنا بڑا سالیہ ہوا ہے اس گھر میں شادی کا قرآن ہے، اب یہ ایس ایچ او ہو گیا اور یہ کہنے کا مطلب بڑے بڑے آفیسر ہو گئے، یہ ہمیں کیا یہاں پر تحفظ دے رہے ہیں؟ کوئی تحفظ نہیں دے رہے۔ پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرا دیا اور قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی میں ڈاکو بے قابو اور پولیس بے بس ہے۔ رواں سال اب تک 109 افراد کو ڈکیتی مزاحمت پر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ درجنوں افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے۔ سولت جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम में अमन की बहाली के लिए ग्रैंड जिरगा तश्कील दे दिया है। जिरगा अरकान अमन की बहाली तक इलाके में क़याम करेंगे। वज़ीर आला ने शरपसंद अनासर के नाम शेड्यूल 4 में डालने की हिदायत कर दी। कहा शाहराहों को महफूज बनाया जाए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए अद्वियात की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने भी कुरम के हालात पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद बुला लिया। कुरम में फौरी अमन का क़याम, सूबाई हुकूमत हरकत में आ गई। अमाइदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा बना दिया। अरकान जल्द इलाके का दौरा करेंगे। जिरगाए अमन की मुकम्मल बहाली तक इलाके में ठहरेगा। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत केपी काबीना का इजलास, ब्रीफिंग में सूरत हाल से आगाह किया गया। बताया गया 133 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी हो चुके। अली अमीन गंडापुर बोले चंद अनासर नफरतें फैला रहे हैं। अमाइदीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें। इन अनासर से दहशत गर्दों जैसा सलूक होगा। शरपसंद अनासर को शेड्यूल 4 में डाला जाए। वज़ीर आला ने आमदोरफ्त महफूज बनाने के इक़दामात की हिदायत की। कहा बज़रिए हेलीकॉप्टर अद्वियात की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। नकल मकानी करने वालों की वापसी के इक़दामात किए जाएं। बिलावल भुट्टो भी मामले पर मुतहरिक हो गए। गवर्नर फैसल करीम कुंटी को फौरी इस्लामाबाद तलब कर लिया। कुरम में कशीदगी और फसादात की तारीख बरसों पुरानी है। 1890 में ज़मीन की तकसीम पर शुरू होने वाला झगड़ा वक्फे वक्फे से अब तक जारी है। तसादुम न जाने कितनी जाने ले चुका है। 1890 ईस्वी अंग्रेज दौर में कबायली इलाका आबाद किया गया। जमीनों की तकसीम भी हुई और इसी तकसीम ने झगड़े को जन्म दिया। BBC के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में लैंड रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं, जिसके बायस मुख्तलिफ कबाइल और अफराद जमीन के टुकड़ों के दावेदार हैं। 1961 ईस्वी कशीदगी के बायस जन्म लेने वाले फसादात फरीकैन की बड़े पैमाने पर अमवात और फिर हर 10-15 साल बाद इस तरह के वाकयात पेश आते रहे। 2007 में भी फसादात में बहुत हलाकतें हुई। इलाके में खौफ के साए हैं। ग्रैंड जिरगे के अमन की कोशिशें जारी हैं और मकीन इन कोशिशों की कामयाबी के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब PTI की फाइनल कॉल और हलाकतों के झूठे प्रोपेगेंडे का मामला FIA साइबर क्राइम विंग ने शिकंजा कस लिया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा फेक न्यूज़ पर साइबर टेररिज्म की दफात के तहत दर्ज किया गया है। बात करेंगे ट्रैफिक हादसे की, रुख करेंगे बहावल नगर की तहसील मंचनाबाद की, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल डाला। हादसे में 2 बहनें जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक खवातीन की शनाख्त साजिदा बीबी और शाहिदा बीबी के नामों से हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी एक हफ्ते बाद भी ख़त्म ना हो सकी। सार्फिन को इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर परेशानी का सामना है। ऑडियो पैगाम भेजने, तस्वीर और वीडियो की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में भी मसाइल दरपेश हैं। ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस और सफ़र के लिए राइड्स बुक करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। फूड डिलीवरी राइडर्स और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से जुड़े दिहाड़ीदारों को अपना रोजगार खतरे में दिखाई दे रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर PTA की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अब देखिए DPO अटक क्या कहते हैं। PTI मुजाहिरीन ने पुलिस पर ब्राज़ीलियन शेल्स चलाए, फायरिंग की। मुजाहिरीन में अस्करी विंग के कारिंदे शामिल हैं। रावलपिंडी में DPO अटक गयास गुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गिरफ्तार 1150 अफराद में से 89 का मुल्क में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुलजमान से आंसू गैस बरामद हुई है। शेल मुजाहिरीन के पास थे। ये ब्राज़ील की इंपोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है हमारे शेल से। इतने ट्रेंड बंदे और इतने हैविली आर्म्ड बंदे हैं ये, और ये उनका ये समझ लें कि अटैकिंग और अस्करी स्क्वाड है, जो कि जितनी कैजुअल्टीज़ हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये टीयर गैस के शेल्स जो हैं ये किस तरह हमें मारे जा रहे हैं। अभी तक जो हमने 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगी कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो नेबरिंग कंट्री है या कौन सी है, उनके और कौन से हैंडलर्स हैं, उनके कौन से अबैटर्स हैं उनके साथ। जाँ बहक होने वाले कारकुनों की तादाद 12 है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सैकड़ों कारकुन जाँ बहक होने के दावों से ऐलान लाताल्लुक़ी कर दिया। 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। इमरान खान साहब ने
अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है, मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है, ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता। बात करेंगे महंगाई की। मुल्क भर में महंगाई में इजाफे की शरह कम होकर 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता माह अफरात ज़र 4.9% रहा। बरकी आलात, मुर्गी और सब्जी की कीमतों में कमी हुई, ताहम अंडे, दाल, मूंग, आलू, घी, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची से सफदर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी। गुज़िश्ता माह में महंगाई की शरह कम होकर 2018 की सतह 4.9% पर आ गई, जो अक्टूबर में 7.2% थी। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर में टमाटर 26.5%, अंडे 11.8% और दाल मूंग 11.15% महंगी हुई। ताहम बरकी आलात, मुर्गी, दाल माश और सब्जी की कीमतों में कमी। रवा माली साल 5 माह के दौरान अफरात ज़र 7.8% रहा, जो गुज़िश्ता माली साल 5 माह में 30% से भी ज़ायद था। अब जिक्र काबीना इजलास का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है महंगाई की शरह में कमी से अवाम पर बोझ कम होगा। धरनों ने मुल्क में जानी कैफियत पैदा कर दी थी। इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई गई। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग सिफर हो गई। माजी में मनचले वज़ीर ने पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान दिया, जिसकी वजह से मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। रिकॉर्ड कमी आई है तो खुदा ताला के फज़ल करम से मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से, एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आ गिरा। मार्केट में चीनी की कीमतें खाली इस वजह से कम नहीं रही, स्मगलिंग जो है अफगानिस्तान की वो ज़ीरो हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी एविएशन की टीम को कि जो यूरोपियन यूनियन से जो इनको सर्टिफिकेट मिला है वो अपना परमिशन द्वारा मिली है। देखिए कितना कौम को कितना नुकसान पहुँचा है, यानी वो घाव लगा है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महंगाई और तजावुज़ात के सद्देबाब के लिए पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम कर दी। अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास में कवायद व ज़वाबित और दीगर उमूर की मंजूरी दी गई। पैरा को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने UAE के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। पैगाम में कहा, अपने बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। UAE की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। भारत में तो तूफ़ान, लेकिन यहाँ मुल्क के बालाई अजला में कड़ाके की सर्दी है। सवात के इलाके कालाम में बर्फ़बारी के बाद हर मंज़र हसीन हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने इस इलाके का रुख किया है। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में बारिश के साथ शदीद जालाबारी हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुँचा। कोहे सुलेमान समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और जालाबारी की भी पेशगोई की गई है। कोयटा में भी दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सर्दी बढ़ गई है तो सर्दी की सौगात का भी जिक्र करते हैं। कराची में सर्द मौसम की आमद के साथ ही सूप की मांग में भी इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। आखिरकार शहर कायद में मौसम सरमा का आगाज़ हो गया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरु मंदिर में वाक़े एक सूप वाले के पास, जो यहाँ पर सूप और यखनी बेचते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर शहरियों का रश भी है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर शहरी से बात करें तो माशाल्लाह से ये बताएगा कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और कराची में आखिरकार यकबस्ता हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बस ये अभी सर्दी आ रही है तो इसीलिए को सर्दी का मज़ा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है शहरी कहते हैं कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, तो इसलिए से जो है गर्म सौगात का इस्तेमाल कर रहे हैं। यखनी जो होती है वो जिस्म को गर्माती है और साथ ही साथ और बहुत सी बीमारियों से भी बचाती है। जी ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। सूप का दौर सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, लियाकतपुर में भी सूप पॉइंट सज गए हैं। जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम चांडिया से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह लियाकतपुर में भी खून जमा देने वाली सर्दी शुरू होते ही शहरियों ने जो है बड़ी तादाद में यखनी पॉइंट, सूप पॉइंट का रुख कर लिया है। हमारे साथ वक्त शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी
जी बिल्कुल, हम बड़े शौक से सूप पीने आते हैं और ये फ़ायदेमंद भी है, ये बीमारियों की मतलब बीमारियों को कंट्रोल करता है। जी, शहरियों का कहना है कि ये गर्मी को सर्दी को कम करने के साथ साथ जो है ये मुख्तलिफ बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। हम इसको शौक से पीते हैं और घर में फैमिलीज़ के लिए जो है यहाँ से पार्सल करा के वो डेली बेसिस पे ले जाते हैं। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिनर्जी कैम्ब्रिज स्कूल्स कम्युनिटी की जानिब से आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। कैम्ब्रिज स्कूल्स की 9वीं से 11वीं जमात के 100 से ज़ायद तलबा की फ़नकाराना तख्लीक़ात पेश की गईं। नुमाइश का इनेकाद सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। चेयर सिनर्जी कार्ल लेंडर और सेक्रेटरी सिनर्जी नौशीन हम्माद ने निगरानी की। कराची बिनाली की CEO नीलोफर फर्रुख मेहमान खुसूसी थी। ज्यूरी में सीनियर जज नोराया शेख और पैनल जजेस आयशा महमूद और फरहत कपाडिया शामिल थीं। सिनर्जी की नुमाइश नौजवानों के लिए तख्लीकी इजहार और खुद एहतसाबी का एक उम्मीद अफजा प्लेटफॉर्म है। कराची में निजी स्कूल ने रोबोट टीचर तैयार कर ली है। AI से तैयार टीचर तमाम मज़ामीन पढ़ाती है। 20 से ज़ायद ज़बानों पर अबूर भी रखती हैं। बच्चे भी रोबोट टीचर से पढ़ने में खुश हैं। सफ्दर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के किसी प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर मुतारिफ करा दिया गया है। ये टीचर मेरे साथ मौजूद है, इनका नाम मिस एनी है, जो यहाँ पर सुबह 8 से 6 घंटे तक बच्चों की रेगुलर बेसिस पर क्लासेस भी लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मिस एनी? ये है वो रोबोट जिसे कराची में निजी स्कूल की टीम ने ना सिर्फ खुद डिजाइन किया, बल्कि इंजीनियरिंग से लेकर प्रोग्रामिंग तक सब कुछ इसी स्कूल में हुआ। रोबोट के लिए सामान शहर के मकामी बाजार से खरीदा गया और इसकी तैयारी में तकरीबन 8 माह लगे और अब ये AI टीचर बच्चों को पढ़ाती है। What is the name of Pakistan parliamentary system? Ooh, I love a good mystery. जो हमारी मिस एनी है वो तो हमें हर सब्जेक्ट पर आती हैं, हम उनसे जो भी पूछें वो हमें सेकंड्स में जवाब देती हैं। काफ़ी हेल्पफुल है, हमें डर नहीं लगता कि इस बात का, क्योंकि ये मतलब एक AI रोबोट है। नॉर्मल टीचर होती है तो उनसे तो डर लगता है। रोबोटिक एंड AI डिपार्टमेंट के सरबराह हसन सिद्दीकी का कहना है कि रोबोटिक टीचर को जल्द ही चलने के काबिल भी बना लेंगे। इसमें अभी जो है अपग्रेडेशन चल रही है, ठीक है। इसके अंदर मोशन डिटेक्टर, सेंसर्स और साथ में जो है इसको जो है हम रिमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मूवेबल हो जाएं और जो है डिफरेंट जगह पर मूव भी कर सकें। वाइस प्रिंसिपल सदफ भट्टी कहती हैं रोबोटिक टीचर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। ये प्योरली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। इसका एक एक जो पुर्जा भी है ना, वो हमने सदर की गलियों में फिर के, याक्ताबाद की गलियों में फिर के, हमने ठेलों से ज़मीनों पे बैठ के इसमें तारें निकाली हैं और हमने इस तरह से AI टीचर को बनाया है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि AI टीचर की तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल न सिर्फ खुशाइंद है बल्कि सरकारी तालीमी इदारों के लिए भी एक रोशन मिसाल है। कैमरामैन हैदर अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए आज न्यूज़।